students. Previous class we have discussed about the present indefinite tense. So that present indefinite tense, only we have discussed about the indefinite tense. Next comes the negative and interrogative and present continuous tense. So when we come to the negative sentences, what may be the formula of, we are discussing, don't confuse that, we are discussing about the present indefinite tense. We are in the present tense only. Present indefinite tense we have discussed, that is we are in present tense. We have not finished the present tense. Present negative sentences. How they can ask the questions from the negative sentences. So what is the formula? So this main formula you should keep in your mind. यहाँ पे क्या है? Subject, main verb plus S formation plus object. So subject plus do or does comes in the negative sentence. Negative sentence. Keep in your mind. Active voice. जब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस कर रहे तो in active voice the sentence starts with the subject and after that do and does plus not plus main verb plus object. यहाँ पे कौन सा चेंज हो गया? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सेम है तो मेन वर्ब की जगह डू और डज है यहाँ पे, तो उसके बाद तो नॉट, दैट इज बिकॉज सेंटेंस इज नेगेटिव एंड लास्ट वन इज, उसके बाद तो दिस वन इज सेम main verb and after that object is. Then what, how it is going to be changed in a passive voice? ये passive voice में कैसा change हो रहा? Same object comes first. Do and does के जगह जब भी हम, you should keep in your mind that this is very important. When you are making in the negative sentence, do and does, we are not going to use do and does in the passive voice. The helping verbs is, if it is present tense, we are discussing about the present tense, so we think about the present tense only. Is, am, are. Is कहाँ पे यूज करना है? When it is single. Am कहाँ पे यूज करना है? When it is I. Are कहाँ पे यूज करना है? When our sentence is plural. Is it clear for you? Is, am, are. We have discussed it very clearly when we have studied the tenses. So, object comes the first. हमारे नेचुरल कॉमन फॉर्मूला के हिसाब से ऑब्जेक्ट को फर्स्ट आता है, तो डू एंड डज के जगह पे डू डज पैसिव वॉइस में नहीं यूज करना. कीप इन योर माइंड दैट डू एंड डज इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड इन अ पैसिव वॉइस. इज, एम, आर, उसके जगह पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब्स यूज करना? इज, एम, आर. नॉट बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस. नॉट तो सेम रहता, नॉट मेन वर्ब वन रहता है यहाँ पे, तो हमको तो आई कार्ड बनाई है पैसिव वॉइस मतलब P3. पैसिव वॉइस हमारा P3 है, तो बाय इज द सेम जनरल फॉर्मूला एंड अवर्स इज सब्जेक्ट. ओनली द चेंज इज डू डज नॉट. डू डज यूज्ड इन ए एक्टिव वॉइस, इज, एम, आर यूज्ड इन ए पैसिव वॉइस. नॉट सेम, नॉट V1, V3 by plus subject. So let us see one example. The example is Rahul does not read Hindi because Rahul always read English. That's why he does not read Hindi. So Rahul does not read Hindi. Rahul is the subject here. Is it clear? No problem. राहुल तो हमारा क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है.
does not, according to instead of does we have to use is and are. Read is a verb, हिंदी इज ऑब्जेक्ट वर्ब. तो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से कौन सा फर्स्ट आना? हिंदी. हिंदी आना ना हमारे फॉर्मूला के हिसाब से. हिंदी इज एम आर में कौन सा लिखते हैं? अकेला राहुल, ओनली वन राहुल इज है. राहुल इज नॉट का तो नॉट सेम है. सी हियर, नॉट राहुल इज नॉट. रीड का क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? रेड. बट रेड इसका भी स्पेलिंग हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? READ. इट्स गोइंग टू बी प्रोनाउंस्ड एज रीड एंड रेड. रेड वी आर गोइंग टू प्रोनाउंस B3 फॉर्म एज रेड, बट RED रेड नहीं लिखते हम यहाँ पे. इज इट क्लियर? इज इट नोन फैक्ट फॉर यू ऑल्सो? रेड का स्पेलिंग क्या लिखते हैं? READ. हिंदी इज नॉट रेड. उसके बाद क्या आना? 3 के बाद, B3 के बाद रेड बाय. सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? हमारे राहुल. Is it clear? Do and does is not used in a passive voice. This is very important. Do और does passive voice में use नहीं करना. Okay. Is it clear? First example. So now try this second example. Teacher do not punish student nowadays. Nowadays teachers are not going to punish the students because punish करने के लिए बच्चे है नहीं यहाँ पे. Okay. Teacher do not punish students nowadays. हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे? स्टूडेंट इज द ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन सा है? टीचर इज द सब्जेक्ट. वर्ब वन कौन सा है? पनिश. दिस इज वर्ब. सो नाउ यू ट्राई टू चेंज स्टूडेंट्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स है यहाँ पे. एक ही स्टूडेंट नहीं है तो इज एंड आर में से कौन सा यूज करते हैं? इज करते हैं? नो. इज यूज्ड इन अ सिंगुलर. आर. स्टूडेंट्स आर. उसके बाद क्या आना? नॉट. B3 फॉर्म. नॉट पनिश्ड. पनिश का क्या चेंज होता है? B1 इज पनिश्ड. पनिश्ड B3. स्टूडेंट्स आर नॉट पनिश्ड. उसके बाद बाय. उसके बाद व्हाट इज अवर सब्जेक्ट? स्टूडेंट्स आर नॉट पनिश्ड बाय टीचर. मैडम ये वैसे के वैसे ही रह गए नाउअडेज. ये कहाँ पे लिखना? ये भी कुछ डाउट आ सकता बच्चों के दिमाग में, स्टूडेंट्स के दिमाग में. ये नाउअडेज इसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. रिमेनिंग पार्ट. RP मीन्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. यहाँ पे लिखना टीचर नाउअडेज. टीचर नाउअडेज. इज इट क्लियर? तो इसका दिमाग खराब नहीं कर लेना. नाउअडेज ये अब ये स्टूडेंट्स होता ऑब्जेक्ट क्या नाउअडेज होता? तो यू कैन आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. एक तो क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना. उसके बाद व्हाट इज गोइंग टू बी रिमेन्ड वो अंत में लिख देंगे बिकॉज दैट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस बोलते हैं इसको. ये तो नॉट नेसेसरी है. तो ये बिना ये लिखने से भी पढ़ो. स्टूडेंट्स आर नॉट पनिश्ड बाय टीचर. तो हमारा सेंटेंस क्या हो रहा है? गलती हो रहा है क्या कुछ? तो नहीं, बिकॉज दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. Okay. Is it clear? Is it clear about the negative sentences? Negative sentences. एक ही चेंज है नेगेटिव सेंटेंसेस में. हमारे एक्टिव वॉइस में नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज यूज करते हैं. Is it clear? डू और डज यूज करते हैं. हम डू डज की जगह प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं. हम दिमाग में रखना we are discussing the present tense. तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या था? is am are था. तो उसके बाद तो पूरे के पूरे फॉर्मूला सेम है. सो नो डाउट इन दैट
दे गिव द नेगेटिव सेंटेंस तो भी बहुत अच्छे तरह से सॉल्व करना, अच्छे तरह से सॉल्व करना। ओके, इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर, नो डाउट इन द नेगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट कम टू द इंटरोगेटिव सेंटेंस। 90% चांसेस है इंटरोगेटिव सेंटेंस ही पूछने का। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आस्क इंटरोगेटिव सेंटेंस बिकॉज थोड़ा डिफिकल्ट होता क्वेश्चन। इफ यू नो द फॉर्मूला यू कैन चेंज इट वेरी इजीली, बट थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए बहुत बार इंटरोगेटिव सेंटेंस ही दिए। सो लेट अस सी। हाँ, वन थिंग यू शुड क्लियर दैट इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होता? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता, नहीं तो डू और डज से स्टार्ट होता। आर यू एग्री? यस। हमारे क्वेश्चन सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है क्वेश्चनियर सेंटेंस। इज इट क्लियर? क्वेश्चनियर सेंटेंस। तो कैसे स्टार्ट होता है हमारे क्वेश्चनियर सेंटेंस? इट इज गोइंग टू स्टार्ट विद द मॉडल ऑक्सिलरीज और विद द हेल्पिंग वर्ब्स और विद द डू और डज। ओके, मॉडल ऑक्सिलरीज तो हम यहाँ पे यूज नहीं करते हमारे वॉइसेस में। So here do and does. So let us come towards the formula. तो इंटरोगेटिव का क्या रहता है फॉर्मूला? पहला तो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? डू और डज से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज एक्टिव वॉइस, दिस इज पैसिव वॉइस। ओके, डू और डज से स्टार्ट हो रहा है। होने के बाद हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है? कौन सा आना? फर्स्ट सब्जेक्ट आना, उसके बाद तो मेन वर्ब आना, उसके बाद तो ऑब्जेक्ट आना। इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है, तो डिफिकल्ट करना भी नहीं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेम है। तो इससे पहले क्या ऐड करें उन्होंने? क्वेश्चन है, इसीलिए डू और डज, इसलिए डू और डज। ठीक है, हम भी वैसा ही करेंगे, हमारे फॉर्मूला के हिसाब से ही करेंगे। तो पैसिव वॉइस में क्या चेंज हो रहा? कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे डू और डज के जगह हम यहाँ पे क्या यूज करें? सेम कॉन्सेप्ट रहता, तो कॉन्सेप्ट इज सेम, घुमा फिरा के उधर ही आते हैं हम। डू और डज की जगह पे हम क्या यूज करें हमारे कौन से सेंटेंस में? नेगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज की जगह पे दैट इज एंड आर। यहाँ पे भी सेम है, इज एंड आर। तो उसके बाद तो सब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस में फर्स्ट आता और ऑब्जेक्ट क्या आता है? पैसिव वॉइस में। वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एनी डिफिकल्टी इन दिस? नहीं मैडम, आप डिफिकल्ट नहीं है, पहले बहुत डिफिकल्ट था क्वेश्चन कैसा चेंज करना। हमारे प्रीवियस बच्चों को भी यही बहुत डिफिकल्ट था, क्वेश्चन आया तो कैसा चेंज करना। सो एनी डिफिकल्ट इन दिस? नो, नथिंग डिफिकल्ट इज देयर। डू और डज की जगह पे हम पैसिव वॉइस में डू और डज नहीं लिखना। दिस इज क्लियर? डू और डज नहीं लिखना। तो डू और डज के जगह पे क्या लिखना? इज एन आर, इज एन आर। ओके, इज इट क्लियर? क्लियर हो गया सभी को? और किसको तो डाउट है? तो वंस अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट और वर्ब सेम है। तो इंट्रोगेटिव में क्या है? सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा? डू और डज से स्टार्ट हो रहा। पैसिव वॉइस में किससे स्टार्ट हो रहा? इज एंड आर से स्टार्ट हो रहा। इज इट क्लियर? लेट्स मूव टुवर्ड्स एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के बाद अच्छी तरह से पता चल जाता है आपको। डू यू प्ले पबजी? इसका आंसर नहीं देना, यस मैडम बोल के नहीं देना। व्हाट यू शुड डू? यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन ए पैसिव वॉइस। क्या आप पबजी खेलते हैं? Yes, you all are going to play PUBG, I know. So make it as a passive voice. So do or does के जगह पे क्या आना? हाँ, first see that sentence is positive or negative. Do you play PUBG? Positive is singular or plural? एक ही है यहाँ पे. You means do you play PUBG? एक ही है वहाँ पे. So okay, एक ही है तो क्या यूज करना? Is. Is and are is used. Is, हाँ, first you identify subject, verb and object. You क्या है यहाँ पे? PUBG क्या है हमारे? ऑब्जेक्ट है. You क्या है हमारे? सब्जेक्ट है. प्ले क्या है हमारे?
verb. ओके, इसको तो छोड़ दो. इसकी जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? छोड़ दो मतलब छोड़ देने का नहीं, इसकी जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? इज एम आर यूज कर रहे हैं. तो इज तो हो गया हमारा, बिकॉज दिस सेंटेंस इज सिंगुलर. इज तो हो गया, इसके बाद अब क्या है ना? पबजी आना. इज पबजी. आफ्टर दिस इज एम आर के बाद ऑब्जेक्ट तो आया, उसके बाद मेन वर्ब. तो हमारा पैसिव वॉइस में तो बी3 रहता. इज पबजी प्लेड, देन आफ्टर दैट बाय सब्जेक्ट. यू क्या चेंज हो रहा? जस्ट रिमेम्बर यू इज गोइंग टू बी चेंज. यू तो चेंज हो रहा वहां पे हमारे प्रोनाउंस में. नो, यू नहीं चेंज हो रहा. तो यू इज written as it is. Is PUBG played by you? Is PUBG played by you? क्वेश्चन मार्क. क्या आपके द्वारा PUBG खेला गया है? Is PUBG played by you? Because मैडम आप तो बोले सब्जेक्ट, जो भी प्रोनाउन सब्जेक्ट में रहता है वो ऑब्जेक्ट में आने के बाद चेंज होता बोलिए. He change हो रहा है, it is not going to be changed. She is going to be changed, but you is not changed. Keep in your mind that you का you ही रहता है. you का भी और him मत लिखो. you is not changed, you का you ही रहता है. Okay, is it clear? So solve this one. उसके बाद do का एक एग्जांपल लेके हम does का एक एग्जांपल लिखेंगे. Okay, does she wash your clothes? Does she wash your clothes? So first we have to identify that sentence is singular or plural. Clothes है यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं तो plural होगा. does की जगह क्या लिखना? does की जगह क्या लिखना? are. Is it right? are, because तो first identify करो subject कौन सा है हमारा? clothes are the object, she is the subject, wash is the V1. So are clothes. So instead of does we have to use यहाँ पे your clothes. So this is complete object here. Are your clothes. इसके बाद क्या है हमारा फॉर्मूला? are your clothes. ऑब्जेक्ट के बाद क्या था? wash. wash is changed as V3. wash. उसके बाद तो हमारा फॉर्मूला by है. हाँ, by के बाद यहाँ पे क्या है? she है. तो she का क्या लिखना? she is here. she तो हमारे सब्जेक्ट में है. जब she ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा था washed by her. बिकॉज हर क्यों आया यहाँ पे? जब सब्जेक्ट she, when she is working in a subject, when she is going to be worked as an object, it's going to be changed as her. We have discussed in the previous class. So are your clothes washed by her? तो मेरे से पहले कोई बच्चे the same example you have tried means all right, all are good. Are your clothes washed by her? Are your clothes washed by her? Okay, any doubt in this? Only the change is do and does. यहाँ पे इंट्रोगेटिव में चेंजेस क्या है? do and does ही चेंज है. बाकी सब तो सेम का सेम. सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हमारा जनरल डेफिनेशन है. तो is a mark, object, main verb, by plus subject. This is common definition. The only thing change is do does के जगह पे क्या चेंज हो रहा? is am and are. Next comes that is present continuous tense. Present indefinite tense we have discussed in that negative sentences, interrogative sentences we have discussed. So let's come to the present continuous tense. So what is this present continuous tense? You all know that continuous tense means there is no end, ing form. The sentence is still there. It's not ended. Continuous.
So what is the formula of that? मैडम कितने फॉर्मूलाज याद रखना, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है. नथिंग इज अ सिंपल फॉर्मूला इज द सेम फॉर्मूला है, दैट इज समवॉट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंसेस. सब्जेक्ट तो सेम है हमारा, इजम आर तो सेम फॉर्मूला है, मेन वर्ब तो सेम है. यहाँ पे क्या ऐड हो रहा? आईएनजी, बिकॉज दिस इज कंटिन्यूअस टेंस, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये तो सेम है. यहाँ पे ओनली ऐड क्या हो गया? ओनली दैट इज आईएनजी. ओके. और नेक्स्ट हमारे पैसिव वॉइस में क्या चेंज हो रहा है? ऑब्जेक्ट प्लस इजमा प्लस बीइंग. आईएनजी का आईएनजी ही नहीं रहता यहाँ पे, बीइंग. आईएनजी का बीइंग रहता प्लस that is main verb 3 plus by plus subject. Any difficult change has happened here? No. ing हमारे एक्टिव वॉइस में रहता, ing का being v3 पैसिव वॉइस में रहता है. So very simple, very simple. Present continuous tense. Continuous means ing फॉर्म में से आईएनजी एक्टिव वॉइस में रहता और उसका पैसिव वॉइस में क्या चेंज हो रहा? बीइंग. रानी इज प्लेइंग क्रिकेट. रानी क्या कर रही है? क्रिकेट खेल रही है. खेलने का टास्क खत्म हो गया क्या रानी का? नहीं. शी इज प्लेइंग क्रिकेट. लेट अस सी. रानी तो हमारा सब्जेक्ट है, प्लेइंग तो हमारा वर्ब है, तो क्रिकेट तो हमारा ऑब्जेक्ट है. तो कैसा लिखना है इसको? क्रिकेट ऑब्जेक्ट तो फर्स्ट आ रहा है ना, तो क्रिकेट इज आता. ओके, ओनली वन रन इज. क्रिकेट इज बीइंग. प्लेइंग का क्या हो जाता है? बीइंग प्लेड. प्लेड मेन वर्ब 3. उसके बाद तो हमारा सेम फॉर्मूला बाय. उसके बाद तो सब्जेक्ट का था. सब्जेक्ट क्या है हमारा? रानी. क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय रानी. ओके, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय रानी. ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. उसमें भी नेगेटिव सेंटेंसेस रहते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी negative sentences रहते हैं. Is it clear by only one example or you want one more example? So many examples are there if you look at the previous year question papers. So one more example you take. She is working. She is working in. Okay, she is playing PUBG. Okay, you try this one. PUBG is our object. Playing is main verb. She क्या हो गया? Subject है. तो what is going to be changed? First क्या आना? PUBG. उसके बाद is and are में कौन सा आता? Only she. She is. Only singular is there. PUBG is ing की जगह पे being. Shall I write this one or you will do? Okay, PUBG is being played by. she का क्या चेंज हो रहा? she का क्या चेंज हो रहा? her. Keep in your mind. she का क्या चेंज हो रहा? her. PUBG is being played by her. Okay, I hope सेम है, इसमें डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है. Same formula, only ing form is added. Okay, is it clear? So then we go for the negative sentences. इसमें क्या है? not लगाते हैं only. Same formula, subject plus is plus not. main verb के पहले not आता. main verb के पहले not आता. plus our same verb 1 plus this is ing because this is continuous tense.
और उसके बाद तो ऑब्जेक्ट सेम रहता। सो इन द पैसिव वॉइस व्हाट इट्स गोइंग टू बी चेंज, सब्जेक्ट क्या चेंज हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज एम आर तो इज एम आर ही रहते, नॉट तो नॉट ही रहते। मेन वर्ब के पहले क्या आना, बीइंग आना, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट, हमारा रेगुलर फॉर्मूला। ओके, लेट्स ट्राई दिस एग्जांपल। रानी इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। रानी इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। विल यू ट्राई? ओके, ट्राई इट। ऑब्जेक्ट कौन सा है? क्रिकेट। क्रिकेट इज not the same, not being, ing is going to be changed as being. Cricket is not being played by, कौन है यहाँ पे? रानी। Cricket is not being played by रानी। This is negative sentence। Negative sentence में कुछ भी difficult नहीं, only not is added, only not is added। Don't take stress। कितने का फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पे याद रखने का फॉर्मूला कुछ तो है, नो सेम फॉर्मूला है, ओनली नॉट यूज्ड है, तो बीइंग की जगह, सॉरी आईएनजी की जगह पे बीइंग, हमारा फॉर्मूला तो वही है। तो इज इट क्लियर? और शैल आई से वंस अगेन, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग। मैडम बीइंग कहां से आ गया? यू कैन आस्क दिस वन। बीइंग आईएनजी है तो यहाँ पे हमारे कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी को आईएनजी नहीं लिखते, यहाँ पे पैसिव वॉइस में बीइंग V3, बीइंग V3 प्लस बाय, तो सब्जेक्ट तो एज इट इज सेम। नेक्स्ट, इन दिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस लास्ट वन देयर इज इंटरोगेटिव। वही क्वेश्चनियर कैसा पूछ सकते, क्वेश्चनियर कैसा पूछ सकते कंटिन्यूअस टेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। लेट अस सी, आवर फॉर्मूला इज, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है? इज, एम, आर। वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड, one thing you should keep in your mind that when it may be any tense question, interrogative sentence, is it going to be started with a helping verb or do or does? उस helping verb से इससे पहले हमारे affirmative sentence में कैसे स्टार्ट हो गया था? do और does से स्टार्ट हो गया था interrogative। तब भी हम क्या यूज करे थे? is am are यूज करे थे। ओके, is am are यूज करे थे। यहाँ पे क्या है? is am are से ही सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो is am are प्लस सेम फॉर्मूला, देयर इज सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ing form। ing is additional because we are discussing about the continuous tense, and last is subject। then passive voice, that is लास्ट में यहाँ पे ऑब्जेक्ट। passive voice same, is am are comes first, उसके बाद तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंस्टेड ऑफ आईएनजी बीइंग इज यूज्ड। बीइंग के बाद भी यहाँ पे देखो V3 फर्स्ट यूज करके बीइंग बाद में यूज नहीं करना। बीइंग प्लेड, बीइंग वर्कड, सो बीइंग के बाद ही V3 फॉर्म बना, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, दिस इज अवर सेम। ओके, इज रानी प्लेइंग क्रिकेट? Is Rani playing cricket? So cricket is the object here. Playing is given plus continuous. Rani is subject. Is Rani playing cricket? Okay. Is से क्यों start कर रहे हैं? Because it is interrogative sentence. You have to start with is, am, are. Is cricket? Is cricket, is you have written cricket, you have written, after that being, is cricket being V3 form, played, formula by, who is subject here? Rani। Is cricket being played by Rani? Question mark।
is cricket being played by Ranu. So nothing difference is there, only in the continuous tense ing form has changed. ing form is used same in the passive voice, that is being. तो being के बारे में स्ट्रेस मत लो, being is used instead of ing. देखो एक्टिव वॉइस में हम ing यूज कर रहे हैं, उसकी जगह पे पैसिव वॉइस में हम being यूज कर रहे हैं. Nothing changes there and our complete formula is same. तो इंट्रोगेटिव रहने की वजह से यहाँ पे हमारे सेंटेंसेस इज एम आर से स्टार्ट हो गए. मैडम ऐसा कैसे स्टार्ट हो गया है सेंटेंस? यू कैन आस्क बिकॉज ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट टू इन अ present continuous tense. So we are going to change this as we are going to start the sentence as from the helping verbs. Okay, this is your present continuous tense. I hope you understood all the, that is simple present tense, present continuous tense, the same present continuous tense. Negative में भी कुछ नहीं है, not use करें, nothing is there, subject plus is a mark plus not, same as it is, object plus is a mark plus not, being तो same है because ing फॉर्म आ गई तो समझ लेना सेंटेंस ये क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है. इट में भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. ing हमारे सेंटेंस में देखने के बाद ग्रंथि पहचान लेना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो है, पास्ट कंटिन्यूअस तो है, नहीं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस. You can identify the present, past and future. Okay, this is about your that is present continuous tense. I hope you understood. Okay, in the next class we will discuss. Thank you.